Hello children, so today's topic is for the class 8 students and the topic is judiciary. So judiciary, which is a very important role for our democratic country. What is judiciary? So judiciary is basically अगर आपको कोई problem हो रहा है, you see anyone is violating the law, then you can approach to the judicial system. Okay, everyone have the right to approach the judicial system if they are facing the violation of the law. Okay, now this is the logo of judiciary. Now, role of judiciary. Now, what is the role of judiciary? The first one is dispute resolution. You know that अगर आपके क्लास में बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, what the teacher does or what the monitor does, वो लोग आके डिस्प्यूट जो है उसको सॉल्व करते हैं. सो सेम वे द जुडिशरी does. Okay, they are resolving the disputes between the citizens and also between the citizens and government and also between the center and state government. Okay, now second one is judicial review. Judicial review is like there are many laws prepared in a country. Okay, now who prepares it, who executes it, that we will see it later. So now chill, relax. Now judiciary, what they does is they passes the laws. ये laws बनते कहाँ हैं, और बनते हैं तो कोई approve भी तो करता होगा, है ना. You people are creating or making the project, who approves it for the selection, like if any competition or whatever is going on, तो teacher क्या करते हैं, they approves it and then they send it to principal, है ना. So like the same way यहाँ पे भी पार्लियामेंट में क्या होता है कि जो laws है वो बनने के बाद जो पास किया है वो जुडिशरी रिव्यू करता है. ओके, देन इट हैज द पावर, उसके पास ऐसा पावर है कि वो उसको कैंसिल भी कर सकता है, उसको स्ट्राइक ऑफ कर सकता है इफ दे थिंक दैट इट इज द वायोलेशन. ठीक है, देन दे कैन कैंसिल द what law. Now the third and last one is upholding the law and enforcing fundamental rights. Now what does it mean? अब यहाँ पे if fundamental rights are violated, approach high court or supreme court. Suppose for example you people are facing some problem in the class, you will go and tell it to the monitor. Monitor will, if the monitor gives you the solution, then what happens? Okay, no problem. But if not, then you go to the class teacher, and then if the class teacher is also not able to solve your problem, then you go to the principal, or if you are having any headmistress, you will go to her or him. And then also if your problem is not solved, then you will move on to the principal, है ना. तो like same way यहाँ पे क्या होता है, first you have to go to the district court, and if you are not having, if the problem is not solved, then you will go to this high court, supreme court, high court, and then you will go to the supreme court. Okay, this way the case goes on. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के बीच में एक इश्यू हुआ था, which was in 1966. Okay, now there was a person whose name was हकीम शेख, जो एक एग्रीकल्चरल लेबरर था बेचारा. ठीक है, अब वो जो है वो ट्रेन में से नीचे गिर गया. अब उसका कंडीशन जो है वो बहुत ही खराब हो गया था. अब सारे हॉस्पिटल वालों ने क्या किया कि मना कर दिया दैट वी आर नॉट गोइंग टू एडमिट दिस पर्सन हियर. नाउ क्या हुआ कि वो लोगों ने केस फाइल किया, एंड देन ये केस जो है वो उसमें से सॉल्व हो. सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि तुम्हें इसमें वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे ऐसे करने के वजह से. ऐसे करना क्यों कानूनी है? बिकॉज द आर्टिकल नंबर 21, ओके, विच इज राइट टू लाइफ, उसके अंदर ऐसा भी एक आर्टिकल आता है जो है राइट टू हेल्थ. तो अगर एक इंसान को आप ट्रीट नहीं कर सकते, देन यू आर लायबल टू पे द कंपनसेशन. ओके, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये केस को सॉल्व किया था और आर्टिकल 21 जो है वो लागू हो गया था. इंडियन जुडिशरी. नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट द इंडियन जुडिशरी? तो
सबसे ऊपर इंडियन जुडिशरी में सबसे ऊपर जो आता है दैट इज सुप्रीम कोर्ट. क्या है? सुप्रीम कोर्ट विच इज इन दिल्ली. और प्रीवियसली यानी पहले कहां पे था? कैलकाटा में. और कैलकाटा में कौन सी डेट में? 21 जनवरी 1950 में कैलकाटा में पहले आया था सुप्रीम कोर्ट एंड देन इट चेंज्ड टू दिल्ली. और अभी हमारे पूरे कंट्री में एक ही सुप्रीम कोर्ट है विच इज इन Delhi. Okay. Now the second one is High Court. सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या आता है? हाई कोर्ट, जो हर एक स्टेट में होता है विच इज कंसिडर्ड एज स्टेट लेवल. नाउ सबसे पहले 1862 में ओनली 3 places used to have the high courts. Now everyone is having the high court. Okay. So बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, इन तीनों जगह पे पहले हाई कोर्ट आया था. क्लियर? नाउ व्हाट इज द थर्ड वन? Anyone can guess? Yes. So third one is district or session court, जो हर एक district में होता है. Now first district court कहाँ आया था? बिलासपुर, which is in छत्तीसगढ़ and 1961 में आया था. Now I'll show you some pictures of the courts. ये है हमारा दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट. Now second one is हाई कोर्ट which was in Bombay, जो 1862 में बना था और अभी भी है. Okay. Now this one is of Calcutta, High Court of Calcutta. This one was also made in 1862. Then the other one is Madras High Court, which was also made in 1862. Then comes the district court. The first है district court बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में 1961 में. Okay. Now different branches of legal system. Now what does this mean? We'll see. ये क्या है? Some people are doing robbery, कोई छेड़खानी कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है. Let's see what it is. क्रिमिनल केसेस, यानी कि हमारे लीगल सिस्टम में 2 टाइप के केसेस होते हैं. मतलब 2 टाइप के नहीं होते, पर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 ब्रांच में डिवाइड किया है. द फर्स्ट ब्रांच इज क्रिमिनल केसेस. नाउ व्हाट इज इट? असॉल्ट, ठीक है, थेफ्ट, मर्डर, डाउरी, हरासमेंट, ये सब चीजें अगर होते हैं तो वो किस में आता है? क्रिमिनल केसेस में. ओके. देन ये जो क्रिमिनल केस जो है ये हमेशा एफआईआर से चालू होता है. किससे? एफआईआर. यानी आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का जो होता है वो फिलअप करना पड़ता है आपको, यानी कि केस फाइल करना पड़ता है, आपको पूरा इंफॉर्मेशन लिख के देना होता है. देन द थर्ड वन इज अक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो बी फाइंड. जो भी अक्यूज्ड है वो जेल में भी जा सकता है और फाइन भी ले सकता है, फाइन भी उसको देना पड़ सकता है. और एज anyone can also be appropriate. वो डिपेंड करता है कि किस तरह का केस उसने किया है. You people know that well because nowadays we are all watching these kind of things in the movies. आपको पता ही है. Okay. Now the second branch is सिविल केसेस. ओके. सिविल केसेस में क्या क्या आता है? जैसे लैंड का प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम, ऐसे सब चीजें जो नॉर्मल चलते रहते हैं हर किसी के लाइफ में, दैट इज सिविल केसेस. ओके. नाउ लैंड डिस्प्यूट हुआ, प्रॉपर्टी डील हुआ, गुड्स का डैमेज करना, डिवोर्स है, रेंट एग्रीमेंट है, ऐसे सब चीजें जो होते हैं वो सिविल केसेस के अंदर आते हैं. ओके. और इसके लिए आपको एफआईआर भरने की कोई जरूरत नहीं है. इसके लिए आप क्या कर सकते हो? कोर्ट में डायरेक्ट पिटीशन दे सकते हो. क्लियर? अब यहाँ पे कोर्ट जो है आपको एक सॉल्यूशन देता है. यहाँ पे आप किस तरह से वाइंड अप होते हो? आपको फाइनली कोर्ट जो है एक सॉल्यूशन देता है. क्लियर? Now you need to remember something, some points. We'll see what it is. Here, मैंने आपको बोला कि हाई कोर्ट जो है वो हर एक स्टेट में है. अब देखते हैं कौन से स्टेट में है. क्या हर एक स्टेट में है? Now, the only territory which has high court is in Delhi. Delhi High Court जो 1966 में established हुआ था. यानी कि एक ही इकलौता टेरिटरी है जो
हाई कोर्ट है जिसका, और वो कौन सा है, दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। बाकी कोई भी टेरिटरी में हाई कोर्ट नहीं है। अब टेरिटरी कौन से आपको पता है ना, अगर नहीं पता है तो बुक खोलो और देखो, या तो फिर गो बैक टू 5th स्टैंडर्ड और 4th स्टैंडर्ड, ओके। नाउ 25 हाई कोर्ट्स आर देयर एट प्रेजेंट। राइट नाउ हमारे कंट्री में 25 हाई कोर्ट्स है, पर स्टेट्स तो 25 नहीं है, उससे ज्यादा है। लेट्स सी। नाउ पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, ये दोनों एक ही हाई कोर्ट शेयर करते हैं चंडीगढ़ में। देन 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जो ईस्ट साइड के जो 4 स्टेट्स है, विच इज आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये चारों सेम हाई कोर्ट शेयर करते हैं। कहाँ पे है, गुवाहाटी में। देन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सेम नहीं शेयर करते, इनका अलग अलग हाई कोर्ट हो गया है रिसेंटली 2019 में। वाई, क्योंकि तेलंगाना जो है वो अलग हो गया है, इसलिए। Clear? Now, appellate system. Now, what is this appellate system? If a person feels that a justice is not given in a lower court, यानी कि district court, then they can approach high court. Okay? मैंने अभी आपको example दिया that class में अगर कुछ problem हो रहा है, you will approach to the monitor first, and then you will go to the class teacher if the solution is not given. Then you will go to the headmistress or some head superior one, and then you if the solution is not received yet, then you will move on to the principal, and if you are not getting the solution from there also, you will move to the management, है ना। तो इसी तरीके से अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि सबसे लोअर कोस्ट कोर्ट जो होता है, अगर आपको वहां से सॉल्यूशन नहीं मिलता है, देन यू विल मूव ऑन टू द हाई कोर्ट, और अगर वहां से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, देन यू विल मूव ऑन टू सुप्रीम कोर्ट, और इस सिस्टम को बोलते हैं एपेलेट सिस्टम। क्लियर? इफ जस्टिस इज स्टिल नॉट मेट, द केस इज टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट वेयर द फाइनल जजमेंट इज मेड। और सुप्रीम कोर्ट में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वहां पे फाइनल जजमेंट होता है। ओके, पहले आता है सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड देन हाई कोर्ट, एंड देन सुप्रीम कोर्ट। Are you clear? Now, independent judiciary. Now, what is independent judiciary? हमारा इंडिया तो पहले से ही इंडिपेंडेंट है, बट जुडिशरी तो कुछ अलग ही लेवल पे इंडिपेंडेंट है। देखते हैं कैसे। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो पूरा अलग है, पर हमारे गवर्नमेंट के ब्रांचेस है। Which are the branches? First one is legislature, and the second one is executive, and the third one is judiciary. Okay? तो लेजिस्लेचर क्या है, मैंने आपको अभी पहले बताया कि हमारे कंट्री में जो लॉ होता है वो कोई ना कोई तो बनाता होगा। अब वो कहाँ बनता है, वो कौन बनाता है, लेजिस्लेचर बनाते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर्स आर हु क्रिएट्स द लॉ, ठीक है, जो पार्लियामेंट में से बन के आता है। पार्लियामेंट के अंडर में 2 सभा होता है ना, राज्यसभा और लोकसभा, वहां बनता है। ठीक है, देन वहां से एग्जीक्यूटिव क्या है, जो लॉ बनाया है, वो बनाया हुआ लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए अप्रूव तो हमें लेना पड़ेगा ना। तो वो हम कहाँ से लेते हैं, प्रेसिडेंट है, ठीक है, वहां से हम प्रेसिडेंट अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि ऑल दीज लॉज आर नीडेड और नॉट, वायोलेशन के लिए बराबर है या नहीं है। सो दीज पीपल एग्जीक्यूट्स द लॉ। Okay, then comes the judiciary. Judiciary is completely a separate thing from the legislature and also from the executive. Okay, judiciary गवर्नमेंट के अंडर में आता ही नहीं है। अब कैसे आप बोलोगे कि भाई आप गवर्नमेंट की चीजें बता रहे हो, ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट बता रहे हो, फिर आप कैसे बोल सकते हो कि जुडिशरी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। सो लिसन, गवर्नमेंट यहाँ पे जो जजेस होते हैं, आपने मूवीज में वगैरह देखा ही होगा, जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में यानी कि सारे कोर्ट्स में जो जजेस बैठते हैं, वो जो होते हैं वो किसी के कोई हायर करता नहीं है उनको, हायर इन द सेंस कि कोई भी पार्टी के लोग या कोई भी इन्फ्लुएंस से आपको जज नहीं बना के बिठाएंगे। अगर आप बोलोगे कि भाई मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूँ, मैं तो मुझे तो हाई कोर्ट में बैठ के जज बनना है, तो मैं तो बनूंगा। So that is not possible. Okay, no one can refer you for the judge job.
क्लियर? तो यहाँ क्या होता है, आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं. इफ यू आर क्लियरिंग द एग्जाम, देन यू कैन get the post in the district court, then high court, then supreme court. Likewise it goes on. ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ भी पैसा दे के जॉब दिलाना ऐसा सब नहीं होता. क्यों नहीं होता? द रीजन इज that we believe the Indian जुडिशरी, यानी कि जजेस को हम बिलीव करते हैं. जजेस क्या करते हैं, दे ब्रिंग अप द सॉल्यूशन फॉर अस, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी जजेस जो है वो ब्राइब लेके किसी और का साइड दे के, गलत का साइड दे के वो ओपिनियन दे, है ना? So that is why this judicial system is not in the under the government. वो जुडिशरी जो है वो पूरे तरह से इंडिपेंडेंट है. जजेस जो है वो पूरे तरह से इंडिपेंडेंट है. वो केसेस को अच्छे तरीके से पढ़ के दे कैन कम अप विद अ सॉल्यूशन. ओके, दैट इज व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. नाउ लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में बनता है. हियर एग्जीक्यूटिव, ऑल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स मिलके तय करते हैं कि वी शुड बी अप्लाई द लॉ और शुड बी स्ट्राइक ऑफ द लॉ. ओके, देन जुडिशरी. जुडिशरी का ये लोगो तो आपको पता ही होगा, आपने कोर्ट्स में तो वगैरह देखे होंगे. ये ऑर्डर ऑर्डर करके बोलता है, ये इक्वालिटी दिखाता है, ये प्रॉमिस कराता है कि तुम सत्य वचन ही बोलोगे, है ना? यस. नाउ some points here are to be noted, which is no political power or influence of politician in appointing judge in judiciary is permitted. मैंने आपको जैसे बोला कि कोई भी पॉलिटिकल के लोग जो है वो इन्फ्लुएंस करके कोई भी जजेस को अपॉइंट नहीं कर सकता. ओके, वो लॉ के खिलाफ है. नाउ सेपरेशन ऑफ पावर्स. यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट. यही एक चीज है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक की फीचर है. ओके, देन इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी एंश्योर्स नो मिसयूज ऑफ पावर बाय गवर्नमेंट. अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये एक चीज एंश्योर करता है कि कोई भी अपना जो गवर्नमेंट है वो उसके पावर का मिसयूज ना करे. अभी नरेंद्र मोदी के पास भी वो भले ही प्राइम मिनिस्टर है, बट ही इज नॉट हैविंग द पावर टू ब्राइब द जज, और मिसयूज नहीं कर सकता भले कोई भी बड़ा इंसान हो. ओके, now legislature and executive cannot interfere into the independent of judiciary. now legislature है जो लॉ बनाते हैं और executive है जो लॉ क्रिएट करते हैं. कोई भी ये इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी के बीच में नहीं आ सकता. ओके, yes. So now next is public interest litigation, which is known as PIL. Okay, now this one is very helpful for the people of our country. Like ये क्या करता है कि ये हमारे ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी को रेस करने के लिए बहुत सारे कंसर्न्स जो भी आते हैं जल्दी से सॉल्व करवाता है. नाउ इट हेल्प्स सॉल्व द प्रॉब्लम एंड इश्यूज ऑफ माइनॉरिटी और डिसएडवांटेज ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल. भले ग्रुप हो या इंडिविजुअल हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, देन जो प्रॉब्लम जो है वो फटाफट सॉल्व करके देता है. ओके, which is a very great thing. Now public interest cases rise from both public and private matters. अब भले ही वो पब्लिक मैटर हो या प्राइवेट मैटर हो, आप किसी भी तरह के मैटर हो तो वो PIL में कर सकते हो. ओके, नाउ इस PIL से क्या यूज हुआ है लोगों को, that we will see. It started in early 1980s to increase access to justice. अब ये जो है ये 1980s में स्टार्ट किया था कि जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल जाए इसके लिए. ओके, now anyone can file a PIL which is allowed only in High Court and Supreme Court. अगर आप चाहते हो कि आपका जो PIL का फाइल जो करना है वो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करो, तो that is not possible. उसके लिए आपको जाना कहाँ पड़ेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, आप डायरेक्टली जाके वहां पे फाइल कर सकते हो. और अगर आप नहीं जा सकते हो तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है भैया. व्हाट इज द सॉल्यूशन? आप लेटर भेज सकते हो या टेलीग्राम भेज सकते हो, किसी भी तरीके से आप PIL कर सकते हो. ओके, नाउ नंबर ऑफ पीपल गॉट जस्टिस थ्रू PIL. नाउ दैट इज अ गुड न्यूज कि PIL के थ्रू बहुत सारे लोगों को जस्टिस मिला है. ओके, एग्जाम्पल, release of prisoners of Bihar who was kept in jail even after their punishment term was complete. मतलब सब जो prisoners थे, जो बिहार के जेल में जो कैदी थे,
उनका पनिशमेंट का जो टाइम पीरियड था इट वाज ओवर, पर खत्म होने के बाद भी उनको वहीं पे रखा गया था। तो ये पीआईएल के वजह से उनका केस जो है वो चला एंड उनको जस्टिस मिला। ओके, मिड डे मील दैट स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स रिसीव बिकॉज ऑफ पीआईएल। अब गवर्नमेंट स्कूल्स में तो आपको पता ही होगा कि स्टूडेंट्स को खाना मिलता है ना, आंगनवाड़ी में एंड स्कूल्स जो होते हैं वहां पे सबको बच्चों को खाना मिलता है। क्यों मिलता है? दैट इज बिकॉज ऑफ पीआईएल, है ना ये अच्छा। It has started under the Article 21 of the Constitution on the right to life, to include the right to food. अब यहाँ पे आर्टिकल 21 जो है जो कहलाता है राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू फूड भी उन लोगों ने ऐड किया था, तो इसके वजह से ये जो है आर्टिकल 21 के अंडर में स्टार्ट किया था। क्लियर? You can see the pictures where the students of government schools are having their food. Here comes Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation, which happened 1985 में। ये एक particular case था। अब इस case में क्या हुआ था वो हम देखते हैं। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो 1985 का केस था, और वो कहाँ हुआ था? सुप्रीम कोर्ट में। ओके, नाउ इट केम बिफोर द कोर्ट एज अ writ petition by payment and slum dwellers in Bombay seeking to be allowed to stay on the payments against their order of eviction during the monsoon month by the Bombay Municipal Corporation। अब बीएमसी वाले जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसने कंगना का घर तोड़ा था, हाँ, उन लोगों ने क्या किया था कि जो भी ये स्लम एरियाज में रहते हैं उनका जो घर है वो वहां से तोड़ के खाली करवाने के लिए बोल रहे थे। क्यों? मॉनसून के टाइम पे वो ऐसे खाली करवाने के लिए बोल रहे थे। तो वो इसके वजह से ये केस जो था वो चला और बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ इस केस के वजह से, और उनको मना कर दिया गया था, बीएमसी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों को मना कर दिया गया था कि आप इन लोगों को यहां से खाली नहीं कर सकते। ओके, गुड न्यूज। The judgment from the Supreme Court of this case established the right to livelihood as a part of right to life. Right to life कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल ऑफ 21। उसके अंदर ये राइट टू लाइवलीहुड का भी ऐड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि राइट टू लाइवलीहुड मतलब इंसानों का जीना भी तो एक राइट ही है ना। आप में से हम सब लोगों को जीने का राइट है, तो इसलिए वो आर्टिकल 21 में ऐड कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये केस को अच्छी तरीके से सॉल्व किया। ओके, एवरीवन हैज द राइट टू लिव देयर ओन लाइफ विद डिग्निटी। हर एक इंसान को अपने डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ अपना लाइफ जो है वो जीने का पूरा पूरा हक है। ओके, गवर्नमेंट कैन नॉट evict or remove people from their slums. It is against the right to livelihood act. अब कोई भी गवर्नमेंट हो, आप किसी को भी उनके स्लम एरियाज में से खाली करने का कोई भी हक नहीं है। वो बेचारे गरीब लोग हैं, उनको वहां से खाली करने का, एविक्ट करने का आपको कोई हक नहीं है ना। Now, the conclusion of the case was government cannot evict them as it will lead to their livelihood and ultimately it will lead to the loss of their life. कैसे लॉस ऑफ लाइफ होगा? क्योंकि उन लोगों को वहां से खाली कराया, तो वो लोग तो स्लम एरिया में जहाँ पे रहते हैं वो घर के पास वाले एरिया में रहते होंगे, मतलब वो जहाँ पे काम करते हैं एरिया, जो वर्क एरिया है उनके पास उन लोगों ने स्लम एरिया में रह रहे होंगे। अब ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बच जाए। अब आप वहां से उनको खाली करोगे तो वो लोग काम कैसे करेंगे बेचारे? अब काम नहीं करेंगे तो वो लोग खाएंगे कैसे, है ना? दैट्स वाई दिस इज द लॉस ऑफ देयर लाइफ, इट विल लीड टू द लॉस ऑफ देयर लाइफ। So these are the photographs of some people who stays in the slum areas. Okay. Justice delayed is justice denied. Have you heard this phrase? इसका मतलब क्या हो सकता है? जस्टिस डिले कर, आप लोगों ने सुना होगा वो डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, है ना? सो वही हो रहा है। जस्टिस जो डिले होता है यानी लेट होता है, उसका मतलब यही है कि जस्टिस हमें नहीं मिलने वाला है। ओके, नाउ
ये कुछ फोटोग्राफ्स है, इसका मीनिंग आप खुद ही समझ लो. Funny picture, but with a very deep meaning. This phrase is often used to characterize the extended time period court takes. Court जितना लंबा period लेता है उसके लिए ये phrase बोला जाता है. It takes long number of years to hear a case. But why is it so? इतना साल लग जाता है एक केस को solve करने के लिए. But what is the reason? Have you thought about it? Because according to 2018 data और 2018 नवंबर और सितंबर के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में 31 जजेस का स्ट्रेंथ है. ओके, यानी कि टोटल आप 31 जजेस को रिक्रूट कर सकते हो, पर हमारे सुप्रीम कोर्ट में 28 जजेस ही है, 3 जन का वैकेंसी है. हाई कोर्ट में 1079 का स्ट्रेंथ है और 645 ही वहां पे जजेस है जो वर्क कर रहे हैं और वैकेंसी कितनी है 434. ओके, देन डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 22,644 स्ट्रेंथ है जजेस के लिए और वहां पे वर्क कर रहे हैं सिर्फ 17,509. जहां हमें ज्यादा जरूरत है वहां कम जजेस है. वैकेंसी कितनी खाली है सीट्स वहां पे 5,135. ओके, तो अगर ये वैकेंसीज जो है वो फुल हो जाते हैं तो हमारे कोर्ट्स को हमारे केसेस को हियर करने के लिए जजेस को टाइम मिलेगा. जजेस बढ़ेंगे, जजेस को टाइम मिलेगा तो केसेस जो है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है ना. सो जो भी लॉ में इंटरेस्टेड है प्लीज गो अहेड और ये वैकेंसीज को फुल कीजिए. ओके.